unless they do one thing: stop what he calls a war on the US dollar. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. Now, these are not small countries. The BRICS nations include Brazil, Russia, India, China, South Africa, and many more. And they now account for what he calls a war. 56% of the world's population and close to half of global GDP. And two of those member countries, India and Brazil, are getting hit with tariffs as high as 50% on their exports to the US that are worth billions and billions of dollars a year. Now, in response, they want to fight back. It's already bad. You don't want the situation to get any worse. They want to match US tariffs, redirect trade to other markets, and they want to form stronger ties within the bloc. During the call, the Indian Prime Minister and President Lula discussed ways to deepen their strategic partnership, including trade, technology, energy, defense, agriculture, health, and people-to-people ties. BRICS is accelerating a multiple-year effort to lower their reliance on the dollar. And the way they want to do that is by trading more in local currencies, building new payment systems, and even talking about a shared currency for cross-border commerce. I don't need to remain subordinate to the dollar. And if they succeed, the dollar's share of global dominance, which has already slipped from over 70% 2 decades ago to about 58% today, could fall a lot faster. And that means potentially higher borrowing costs for US consumers, weaker sanction power, and a restructuring of the global economy. Apple was the most valuable company in the world from 2021 to 2023, but in 2024 they fell to second place, with Microsoft claiming the title for half the year. So now in 2025, Apple has fallen to third place behind NVIDIA and Microsoft. In just 3 weeks, Apple's revenue shrank by 28%. Amounting to a $1.6 trillion loss. Overpriced iPhones have led to stagnant sales. Ontario inhabitants are now poorer per capita than inhabitants of Mississippi, and that's the problem. ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ My favorite statistic right now is that if the UK, France, or Germany join the United States, first they will become the poorest state in the Union more than Mississippi. So this is I'm sorry, but are we really suggesting that countries like Spain, Italy, France, places with piazzas, sculpted marble, high-tech public transportation, and excellent centers of education and research are poorer than Mississippi? No offense to Mississippi, but come on now. Measuring a country's gross domestic product per capita and comparing it to the US has made for some pretty emotionally charged headlines over the years. From Well, probably not. The brand is much more famous for its phones and flat screens, but arguably the most important drivers of South Korea's biggest family business are these things. And for the first time in decades, the company's got a massive problem here. Samsung is under assault from all sides, and they are getting stretched thin. Samsung is in this position of playing catch-up, and that's difficult to do if you don't have growing revenue, if you don't have expanding profitability. And unfortunately, The chip profits tumbled. Big disappointment. The semiconductor division reporting operating profit of 400 billion won. Totally missed analyst projections for 2.73 trillion. Samsung shares have whipsawed in value since their 2020 peak and tanked in 2024, while long-standing rival SK Hynix surged. Here, in this remote northwestern corner, वो रेयर अर्थ मेटल्स भी भारत को देता रहेगा, फर्टिलाइजर। नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजे आप से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ खबरों के संपादक अंशुमान तिवारी जी जुड़ चुके हैं मुंबई से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका।
धन्यवाद विपुल जी। और आज मैं जुड़ रहा हूँ घर से। मुंबई की हालत पानी पानी है, चारों तरफ निकाह है। मुंबई में इस पहली बारिश में इतनी खराब स्थिति है कि आना जाना बिल्कुल बंद है, सारी सड़कें तालाब बनी हुई। तो इसलिए आज मुझे घर से ही ये शो करना पड़ा। सर, आज का ऑन द शो बताएं लोगों को, और आज का विश्लेषण शुरू करें। तो आपने जिक्र छेड़ा तो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोग जो है लोगों के रिलेटिव, कुछ लोग मुंबई में हमको लगातार बहुत ज्यादा देखते हैं। अभी की क्या स्थिति है मुंबई की? जो बारिश, क्योंकि रेड अलर्ट जारी किया गया था, वो हम लोगों ने खबरों में देखा, लेकिन बारिश की क्या स्थिति है सर, और सड़कों की क्या स्थिति है? बिल्कुल जी, 150 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है मुंबई में पिछले करीब 12 घंटे में। और कुछ हिस्से हैं दादर माटुंगा के जोन में बहुत ज्यादा बारिश है। कल्याण थाना कल्याण उससे भी पहले से दिखाई दे रहा है, जो काफी जटिल स्थिति और उसका 2 दिन तक बने रहने की संभावना है, क्योंकि काफी बारिश अभी और बाकी है मुंबई के लिए। तो मुंबई में जो लोग हैं वो तो इस परिस्थिति का। व्हाइट हाउस में पहली बार ट्रंप ने भी अमेरिका के पास जो ट्रंप है कि जहाँ पर आप तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो, यही बात बोलते हुए आसिम मुनीर वहाँ पर पहुँच गए। लेकिन ग्रेट है अंडर द स्काई, आसमान के नीचे आपको जो चाहिए हर एक चीज देने को तैयार है। आप व्हाइट हाउस में पहली बार ट्रंप ने भी कहा इतने सारे नेता एक साथ पहुंचे और बड़ी तेजी से पहुंचे। ये जो तेजी है, वाकई कुछ अर्थ होगा इसका? कहीं बात पहुंचे उनका कि नहीं? अब सीज फायर का मुझे लगता है कि वैसे भी सीज फायर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वायलेशंस होते हैं, उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वो लगातार कह रहे थे कि सीज फायर करूंगा। अलास्का में पुतिन से मिलने के बाद उनके तो सुर बदल गए थे। ये सबसे बड़ी एक राजनीतिक और जो हम लोग कहते हैं कि जियोपॉलिटिकल विन जो है पुतिन के लिए रही है, क्योंकि पुतिन जब आए थे अलास्का शिखर वार्ता के लिए तो उनके सामने क्लियर था कि उनको सीज फायर के लिए अग्री नहीं करना है। पुतिन देख रहे हैं कि बैटलफील्ड इज इन देयर फेवर। तो ज़ेलेंस्की का सामना जो कल हुआ वो एक और पुतिन से तो नहीं हुआ है। तो 2016 की जो इलेक्शंस है उसमें रशियन इंटरफेरेंस हुआ था, पुतिन ने इंटरफेरेंस किया था, जिससे ट्रंप का फायदा हुआ। तो बहुत बदला माहौल था पिछली बार से, जब आपको याद होगा ज़ेलेंस्की पिछली बार आया था। और इस बीच एक और काम हुआ, जब ये मीटिंग हो रही थी तो ट्रंप ने सीधे पुतिन को फोन लगा दिया। ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ेलेंस्की अब इन इलाकों में से कुछ को छोड़ दे, यूक्रेन 1 इंच भूमि भी देना नहीं चाहता। हिस्टोरिकल क्लेम से यूक्रेन के बारे में उसको कैसे सॉलिडिफाई करे, ये एक दृष्टिकोण और ये एक पॉलिसी से इस दिशा में आए थे। ट्रंप चाहता क्या है, उस तरह से उनको इज्जत देनी उनके बहुत दो बातें नहीं कर रहा है। तो मेरा तो फिर एक भोला भाला प्रश्न फिर यही है कि जो पुतिन चाह रहे हैं वही तो हो रहा है। अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ ताइवान पर तो फिर ये मान लीजिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, वॉर ही हो जाएगा। ऐसा क्या है ताइवान में कि पूरी दुनिया लड़ जाएगी उसके लिए? हालांकि बहुत छोटा सा अगर आप नक्शे पर देखें, लेकिन इम्पोर्टेंस बड़ा है। सेमीकंडक्टर्स वाला जब मामला हुआ था तब लोगों की नज़र में पहली बार हुआ था कि भाई ताइवान में ऐसा क्या है। अभी ताइवान ने 1970s से उस पूरी इंडस्ट्री को मोनोपोलाइज कर रखा है। वॉर, जब तक वॉर प्रॉफिट देते रहेंगे तब तक वॉर होते रहेंगे। अपने औपनिवेशिक दौर में ब्रिटिशर्स को एक ख्याल था कि ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि भाई हमें जो ये उपनिवेश है, ये जो वो लोग हैं जिनकी चमड़ी गोरी नहीं है, उनको हमें सिविलाइज बनाना है। और इस थ्योरी को व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी कहते हैं, आप इससे वाकिफ होंगे। उस व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी का प्रभाव ये रहा कि पूरी दुनिया को उन्होंने गुलाम बना लिया और वहां पे उनका शोषण करना शुरू किया। मुझे लगता है उसी विचारधारा का एक नया
जो बोल सकते हैं ना कि एक ओल्ड वाइन इन न्यू पैकेज डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को जो शांति का मसीहा बनने की जिद चढ़ी है, दुनिया के हर फटे में पैर डाल करके खुद को ऐसा प्रेटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम जो है यहाँ पे शांति स्थापना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए पता है अभी कुछ ऐसा हुआ है कि इन्होंने अब चीन को भी साथ में लेने की कोशिश की है और ये बताया है कि भाई हमारे रहते चीन ने कह दिया कि साहब जब तक देखो आप हो ना तब तक तो अटैक हम नहीं ही करेंगे। हुआ क्या है सारी बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम हमारे साथ में है तो ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जब ये साहब जा रहे थे ताइवान के इशू की आई तो उन्होंने एक बयान दिया। उस बयान में ये कहा कि शी वांट इन्वेड ताइवान ड्यूरिंग माय प्रेसिडेंसी, यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो बहुत धैर्यवान है और चाइना भी मानता है कि मैं भी बहुत धैर्यवान हूं। और उन्होंने कहा है शी जिनपिंग ने कि मेरे शासनकाल में तो कम से कम वो ताइवान पे हमला नहीं करेंगे, मतलब उसको कब्जे में नहीं लेंगे। अब हुआ क्या कि जो शब्दावली इस पर थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है मेरे दोस्तों। बात जब ये कही जा रही है कि जब तक आप प्रेसिडेंट हैं तब तक हम इसको अपने इलाके में शामिल नहीं करेंगे या तब तक हम इस पे कब्जा नहीं करेंगे, मतलब ये कि जो शांति की अवस्था है ये कब है, जब डोनाल्ड ट्रंप है। वो अटैक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। यदि आप नहीं होते या जब आप नहीं होंगे तब शायद हम ऐसा कर सकते, इसलिए भविष्य की जिम्मेदारी नहीं है। तो कुल मिलाकर के हर स्थिति के अंदर बात तो तय है कि इस बात की में गहराई तो नजर आ नहीं रही, क्योंकि जब रॉयटर्स ने कोशिश की कि भाई इस ये जो बयान आया है इस बयान की पुष्टि चाइनीज दूतावास से भी ले ली जाए तो वहां से तुरंत में कोई जवाब नहीं दिया गया, मतलब बात की गहराई स्पष्ट नहीं है। तो सारी की सारी जो कोशिश है वो यही है कि किसी भी स्थिति के अंदर वो चमकता हुआ सिक्का शांति का नोबल हमें मिल जाए तो कुछ बात ही होगी। बात के सर गहराई में चलते चरण में समझते हैं। अब यहाँ पे शी जिनपिंग की जो मुस्कुराहट है वो इसलिए है कि भाई तुम बोल क्या रहे हो, चाह क्या रहे हो, क्योंकि अगर कुछ बयान होगा तो स्पष्टीकरण आ जाता है, स्पष्टीकरण आया नहीं तो सर हम फिर इसके इशू की गहराई में जाने की शुरुआत करते हैं। इस मुस्कुराहट का राग वीडियो के कहने में हो जाएगा, पूरा वीडियो मेरे दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। सबसे पहले जो आप यहाँ देख रहे हैं ये है पीट हेग्सेथ। पीट हेग्सेथ कौन है? ये अमेरिका के रक्षा सचिव हैं, यानी इनको रक्षा मंत्री समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है शांग्री-ला होटल। ये शांग्री-ला समिट आपने सुना होगा, वो शांग्री-ला समिट इसी शांग्री-ला होटल के नाम पे पड़ा है और इसकी लोकेशन है सिंगापुर। तो दोनों को जब एक साथ लाते हैं तो सर सीन बनता है ये। पीट हेग्सेथ अभी 22वीं शांग्री-ला डायलॉग समिट में बोल रहे थे, शांग्री-ला डायलॉग्स में बोल रहे थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है और बोलते बोलते साहब ने एक बात ही रखी कि जो चाइना है ना, ये चाइना ताइवान पे कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुका है। कौन बोल रहे हैं? पीट हेग्सेथ, जो कि अमेरिका के रक्षा सचिव हैं, वहां के रक्षा मंत्री हैं, जो कि उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। तो इनका हर एक वाक्य आप मान सकते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट की ही मर्जी से निकले हुए शब्द होते हैं। तो जब यहाँ पे चीन ताइवान पे कब्जा करने की बात पीट हेग्सेथ ने शांग्री डायलॉग में कही तो मामला बड़ा पेचीदा हो गया था कि भाई आखिर में चल क्या रहा है। अब यहाँ पे कहा कि सब चीन की आर्मी तैयार है, चाइना अपनी पूरी आर्मी को बिल्डअप कर चुका है। तो जब उस समय पे पीट हेग्सेथ के बयान में चीन हमला करके कब्जा कर रहा था तब भी तो राष्ट्रपति ट्रंप ही थे। और आज जब आप बात कर रहे हो दुनिया में शांति के विस्तार की, प्रेसिडेंट ऑफ पीस बनना चाहते हो, शांति के राष्ट्रपति बनना चाहते हो, तब भी तो आप ही राष्ट्रपति है जनाब। तो ये दोहरा द्वंद्व कैसे हुआ? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं सर। इसको थोड़ा सा आप जड़ में जाएंगे तो आपको ये समझना होगा कि ताइवान का बेसिकली इशू है क्या, क्योंकि बिना गहराई में गए चीजें हमारे को समझ में नहीं आएंगे। मेरे साथियों, बहुत लंबे समय तक तो ताइवान एक तरह से, क्योंकि समुद्री सीमा से दूरी है, आप देखिएगा तो बीच में समुद्री सीमा है, लगभग यहाँ पे 160 किलोमीटर का ये समुद्री पास आता है। तो जिस समय पे तकनीकें नहीं थी बहुत ज्यादा, तो बहुत लंबे समय तक तो ताइवान अछूता रहा, इसके ऊपर चाइनीज शासकों की नजर पड़ी ही नहीं। बहुत लेट आकर के साल जब देखा जाए तो 1683 में क्विंग राजवंश ने इसके ऊपर अपना शासन स्थापित कर लिया।
अपने एरिया में काउंट कर लिया। लेकिन सर ये एक तरह से इग्नोर्ड एरिया पड़ा रहा, यहाँ ना कोई विकास हुआ ना कुछ हुआ, विशेष तवज्जो इस एरिया को दी नहीं गई। लेकिन बहुत लंबे समय तक ये शासन यहाँ कर नहीं पाया, क्योंकि 1895 के अंदर जापान ने ताइवान पे कब्जा कर लिया था। अब जापान ने जब अटैक किया, सिनो जापान वॉर जो हुआ था मेरे दोस्तों, सिनो जापानीज वॉर 1894 to 95, तो वहां पे एक शिमोनोसेकी ट्रीटी होती है, शिमोनोसेकी संधि जो हुई, इस संधि के तहत ये हुआ कि भैया ताइवान को जापान को दे देते हैं। ठीक है, यानी पहले इग्नोर्ड एरिया था, बाद में चाइना के क्विंग राजवंश ने उसके ऊपर अपना अधिकार जता दिया, और जब जापान से लड़ाई होती है, जापान से झगड़ा होता है, स्थितियां बिगड़ जाती हैं, विकृत हो जाती हैं, तो ये ट्रीटी की जाती है। उस ट्रीटी के तहत जापान को बोला जाता है भैया ताइवान अब आपका है। अब समझिए